Good morning, children. Today I will going to teach us class 9, part 3rd, subject economics and social science. Lesson first, the story of village Palanpur. In previous video I will taught what is the production or what is necessary of our production. Land, labor, capital are the four requirements of production. So today next points are concept of land, labor and capital, distribution of land, who will provide the labor, the capital needed in farming, transactions with other regions, non-farm activities in Palanpur, dairy, an example of the small scale industry manufacturing in Palanpur, the shopkeeper of Palanpur and transport. So describe the main points. So let us start. Open your book. Concept of land and labor and capital. Distribution of land. You must have realized how important land is for farmers. यानी कि आप लोगों ने ये इतने सब पढ़ने के बाद ये महसूस किया होगा कि लैंड फार्मिंग के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि अगर लैंड नहीं है तो फार्मिंग हो ही नहीं सकता, यानी कि खेती की नहीं जा सकती है, कल्टीवेशन हो नहीं सकता है। तो लैंड जो है वह प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation in Palanpur. About 1/3 of the 450 families are landless, and 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. जो पालनपुर गांव में 450 फैमिलीज जो है वो लैंडलेस है। 1/3 of the 450 families are landless, 150 families लैंडलेस, मोस्ट ऑफ द दलित, और 150 फैमिलीज के लगभग लोग जो हैं वो दलित हैं और हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, उनके पास जमीन नहीं है कल्टीवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज ऑन लैंड, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. Cultivation of such plots does not bring immediate income for the farmer family. यानी कि रिमेनिंग फैमिलीज में तो कुछ लोगों के पास जो है अपनी जमीन खुद की है, 240 फैमिलीज कल्टीवेशन कर, 240 फैमिली जो है वो खुद अपने छोटे छोटे प्लॉट पर या जमीन के प्लॉट पर अपनी कल्टीवेशन या करते हैं। इन 1916 गोविंद वाज ए फार्मर विथ 2.25 hectares of largely unirrigated land. 1960 में गोविंद नाम के किसान के बारे में बताया जा रहा है कि 2.25 hectares of largely unirrigated land, यानी कि उसके पास इतनी जमीन है लेकिन वह क्या है, अनइरिगेटेड है, उसको सिंचाई नहीं की गई है। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 sons, Govind cultivated the land, though they did not live very comfortably. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed some years after Govind's death. This land was divided among his 3 sons. यानी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों में वो जमीनें बांट दी गई और 3 sons is one now a plot of land that is only 0.75 hectare in size. अब इस जमीन को जब तीनों भागों में बांटा गया तो 0.75 hectare in size, यानी कि इतने आकार में एक बच्चों को मिला। Even with improved irrigation and modern facilities methods, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during part of the year. यानी कि जब ऑफ सीजन होता है, कभी जैसे गर्मी में अप्रैल में गेहूँ कटने के बाद जमीन खाली रहती है तो उस समय 2 महीने 3 महीने की, क्योंकि जब तक रेनी सीजन नहीं शुरू हो जाता है तो उस समय तो 2-3 महीने तक फार्मर किसान जो वो फ्री होते हैं, तो उस समय वो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन के काम पर ड्यूटी करने लगते हैं, वर्कर का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। कुछ वर्कर जो है कहीं और चले जाते हैं, यानी पार्ट टाइम जॉब वो लोग करते रहते हैं, कुछ एडिशनल काम करते रहते हैं। यू विल प्रोवाइड द लेबर आफ्टर लैंड. Labor is the next necessary factor for production. Farming requires a great deal of hard work. Small farmers, along with their families, cultivated their own fields. Thus, they provided the labor required for farming themselves. Medium and large farmers had
from laborers to work on their fields. कुछ लेबर जो है अपने फील्ड में मेहनत से अपने काम करते हैं, लेबर मेहनत से लगा करके काम करते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्शन और उत्पादन जो है अच्छी तरह से हो सके। इरिगेशन का काम करते हैं, उसके क्रॉप या फसल को अच्छी तरह से सीड सर्विस या मैन्यूर वो डालते रहते हैं जिससे कि उनके काफ़ी अच्छी फसल हो सके। फार्म लेबरर्स कम देयर फ्रॉम लैंडलेस families or families cultivated small plots of land. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer for all their work. Wages can be in cash or in kind. Sometimes laborers get meals also. Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another. There is also a wide variations in the duration of employment in farm. Laborers might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. इसमें किसानों की सिचुएशन स्थिति बताई गई कि किस तरीके से वो लोग मिलते हैं। कुछ किसान तो ऐसे होते हैं जैसे खेती करते हैं, सुबह से शाम तक खेती करते हैं, जैसे कि सब लोग सारे बच्चे जानते होंगे कि गांव में जैसे गेहूं लगाया जाता है या धान लगाए जाते हैं खेतों में, तो जो वर्कर काम करते हैं, जो लेबर या किसान काम करता है, वो क्या करता है, दिन भर के वेजेस यानी कि एक सुबह से लेकर के शाम तक जो मजदूरी करता है, खेती करता है या जो काम कर रहा है, उसके अपने वेजेस या मेहनताना या वेतन मांगता है, तो उसको उस समय वो वेतन दिया जाता है, यानी कि जो दिन भर का उसका मेहनताना बनता है वो उसको दिया जाता है। उसमें कुछ लोग तो दयालुतावश कुछ ज़्यादा भी दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे भी कम देते हैं। जैसे 500 रुपये में उसकी डीलिंग हुई है कि 500 रुपये सुबह से शाम तक जो काम किया जाएगा उसको 500 उसको दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में लास्ट टाइम में जब वो जाने लगता है तो उसमें उसको सिर्फ कितने पैसे मिलते हैं, 400 रुपये मिलते हैं, 450 रुपये नहीं 25, 50, 100 रुपये जो है उसमें माइनस कर दिया जाता है। इससे क्या है, गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, और मजदूर बेचारा क्या करता है, दिन रात अपने पेट की वजह से, अपनी लिविंग की वजह से, अपनी जीविका को चलाने के लिए वह जो है दिन भर काम करते रहता है, और कहीं कंस्ट्रक्शन की जगह पर काम कर रहा है, जहाँ बिल्डिंग इंडस्ट्री से फैक्ट्री बनाई जाती है वहाँ पर वह काम करता है। देयर इज आल्सो वाइड वेरिएशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वह दिन भर रोजगार की खोज में एक जगह से दूसरे जगह पर टहलता या घूमता रहता है। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, एक पॉइंट आते हैं, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, so that the farmers now needs more money than before. Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ उधार कर्जा ऋण ले करके सोचते हैं कि हम खेती कर लेंगे, और खेती के बाद जो हमको फ़ायदा होगा, जो प्रॉफिट होगा मार्केट में बेचने के बाद, उससे हम उसका पैसा वापस कर देंगे। ये सोच करके छोटे छोटे किसान जो होते हैं अपनी खेती को उधार और ऋण कर्जे में लेकर के काम करते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई, दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। लेकिन उस पैसे का जो इंटरेस्ट या ब्याज जो होता है वो इतना हाई होता है कि वो बेचारा बढ़ता रहता, लेकिन पे नहीं कर सकता, चुका नहीं सकता। इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग? You shall find the answer in this section. अब इसमें कहा गया है कि छोटे किसान जो हैं और द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो है देयर ओन सेविंग, लोग तो अपने कुछ थोड़ी बहुत सेविंग फार्मिंग से कर लेते हैं, लेकिन दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और वे लोग जो है सिर्फ जुटाने में लगे रहते हैं कि कैसे हम जिसका बोरो या उधार लिए, जिसका ऋण और कर्जा लिए हैं, उसको हम किस तरीके से दे सकें। ट्रांसैक्शन विथ अदर रीजन्स, transaction with other regions. Let us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using the three factors of production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmers do with the wheat
they retain a part of the wheat for the families. Consumption and sell the surplus wheat. Small farmers like Savita and Robinson have little surplus wheat because their total production is small and from this a substantial share is kept for their own family needs. So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. जो गोविंद का बड़ा लड़का है, यानी कि छोटे किसान लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रोडक्शन या उत्पादन गेहूं का हुआ है, अपने साल भर के खर्च रखने के, यानी साल भर के खाने के लिए खर्च जो होता है उतना अनाज रखने के बाद उसने क्या किया, पहले तो मार्केट में ये लोग बेचते थे, लेकिन उसके बाद उसने टोटल प्रोडक्शन स्मॉल एंड फ्रॉम द सब्सटेंशियल शेयर इन द केयर ऑफ देयर ओन फैमिलीज, और उसने बड़े बड़े लैंडर्स के साथ जो है मीडियम मिल करके उसने मार्केट में उसको बेचना शुरू किया, और इसके बाद उससे जो उसको फायदा हो रहा है उससे वो अपना उसको सेविंग कर रहा है, और जो लोगों का उसने दिया है उसको दे भी रहा है. Non-farm activities in Palampur, you have learnt about the farming as the main production activity in Palampur, we said. Now, take a look at some of the non-farm production activities. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activity there other than agriculture. कुछ पालमपुर में एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे और कुछ लोग जो है अदर एक्टिविटीज़ पे थे. अदर एक्टिविटीज़ में क्या क्या था? डेयरी था, यानी कि दूध की सप्लाई की जाती थी. देयर इज़ ए कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. कुछ लोग तो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करते थे, यानी कि खेतों में काम करते थे, प्रोडक्शन करने का काम करते थे क्रॉप के, लेकिन कुछ लोग जो है डेयरी का काम करते थे. पीपल फीड their buffaloes on various kinds of grass and jowar and bajra that grow during the rainy season. और बरसात में ज्वार बाजरा और बफेलोस भैंसों को खाने पीने के लिए चारे की व्यवस्था जो ग्रेजिंग किए जाते थे, पास्चर की व्यवस्था जो की जाती थी, वो बरसात के सीजन में ये लोग ज्वार बाजरा और ये विभिन्न प्रकार के ग्रास उनको खिलाने के लिए. द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, और जो उसके दूध होते थे वो लोग ले जाकर के उसको बेचते थे रायगंज में. An example of a small scale manufacturing in Palampur. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Palampur गाँव में कुछ लोग डेयरी में एंगेज थे और एक्टिविटी करते थे, कुछ लोग जो है फार्मिंग में थे, और कुछ लोग जो है ये आपके स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए थे. अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स place in the big factories in the towns and cities. Manufacturing in the Palampur involves very simple production methods and are done on a small scale. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. इस तरह से छोटे छोटे गाँव में जो लोग थे वो लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ही लगे हुए थे, जिससे कि जो भी गाँव और शहरों में बन रहे थे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज, उसमें लोग जो सिंपल प्रोडक्शन होते थे उसमें वे लोग अपने अपने घरों के लोगों के साथ मिलकर के उसमें काम करते हैं. द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रेड are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some cloths. तो वहाँ पर शॉपकीपर छोटे छोटे दुकान जनरल स्टोर होते थे जहाँ पर कि घरेलू सारे पूरे डोमेस्टिक गुड्स मिलते थे, सामान बेचे जाते थे, और इस तरह से लोगों के जीवन यापन करने का विभिन्न तरीका था. विभिन्न एक्टिविटीज़ होती थी, डेयरी था, एग्जाम्पल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, और ट्रांसपोर्ट. देयर आर वेराइटीज ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज. रिक्शा वाला, टांगा वाला एंड जीप, tractors, trucks, drivers and people driving the traditional bullock cart and buggies are people in the transport services. ये सब जो है छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट भी लोग चलाते थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे यहाँ से गांव से लेकर के बिलेसपुर गांव, पालमपुर गांव से लेकर के सिटीज़ तक जो है लोग तांगे से या रिक्शा से या बुलेट कार्ट से जाते रहते थे. तो इसको भी चलाने वाले लोग ड्राइवर लोग रहते थे. तो आज ये लेसन आपका इन हुआ.
और इसमें इस स्टोरी का एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष ये निकला कि विलेजपुर एक गांव है, विलेज पालनपुर एक विलेज है, उस विलेज में किस तरीके से प्रोडक्शन या उत्पादन या वहाँ के रहने वाले लोग जो थे वो लोग किस तरीके से उस गांव में अपनी जीविका को चलाने के लिए क्या क्या साधन कैसे कैसे उपयोग करते थे। तो इस उत्पादन करने के लिए जो 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, ये चारों को किस तरीके से उपयोग करते थे। और कुछ लोग जो है अपना एग्रीकल्चर का काम करते थे, ज़्यादातर लोग 80% लोग जो है इस पर डिपेंड होते थे। कुछ लोग डेयरी फार्म करते थे, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट करते थे और कुछ लोग जो है शॉपकीपर्स के काम करते थे, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर काम करते थे। तो इस तरह से अपनी आजीविका को चलाने के लिए ये सारे फैक्टर्स जो थे मेन, वो लोग अपने इस पालनपुर में इलेक्ट्रिसिटी और इस न्यू मेथड से कितना प्रोडक्शन या उत्पादन ज़्यादा हुआ, न्यू मेथड आ गए, न्यू तरीके आ गए और टूल्स या औजार चलने लगे, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हो गई, तो किस तरीके से ये प्रोडक्शन और हाई हो गया। तो यह इस लेसन में बताया गया है। तो आप लोग इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसके ऑप्शनल क्वेश्चन को अच्छी तरह से और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को लर्न करेंगे।